So now we are starting with majoritarianism in Sri Lanka. Fine. Majoritarianism का meaning क्या होता है? Rule of majority. Fine. So Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. ये हमने देखा था. ठीक है. But यहाँ majority में कौन थे? Sinhalas. Minority में कौन थे? Tamilians. Clear? तो जो सिन्हाला कम्युनिटी दे वांटेड टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द नोशन कि हम मेजॉरिटी में हैं तो वो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते थे. तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स. मेजॉरिटेरियन मेजर्स क्या होते हैं? विल सी दैट. पहला मेजर क्या था? इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. So that means you are disregarding Tamil. सिर्फ सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. Governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. कि if you are Sinhala तो आपका तो एडमिशन हो ही जाएगा. तो यहाँ पे पहला मेजर था that Sinhala was the official language. Second measure was preferential policy. Means Sinhala applicant अगर है तो वो 100% सेलेक्ट हो जाएगा, whether it is a university position or government job. Next, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो अब इन लोगों ने कहा that we will follow या we will protect Buddhism. इसका क्या मीनिंग है? You are not secular. आप एक रिलीजन को फोकस कर रहे हो. अब सपोज घर में भी है, if there are 2 kids and if one kid is extra favored, तो दूसरे के मन में क्या जाएगा? That something wrong is going on. The same happened in with Tamils. So one after the other, when government started taking these measures, it led to the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. उनको लगा that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. Nobody is respecting their culture, their language, their position in the society, and they felt that the constitution and government policies denied them equal political rights. They were discriminated in jobs, opportunities, interest, उनके religion, उनका culture, उनकी education, everywhere they were disregarded. And because of all this, there were tensions between Sinhala and Tamil communities. अब Sinhala Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. अब इन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी. क्या डिमांड करी? That they launched parties and struggles. What were the demands? That Tamil should be their official language, regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. अब वो कह रहे हैं कि हमें एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी दे दो, हमें इक्वालिटी दो, हमारी लैंग्वेज को कंसिडर करो, but they all were denied again and again. Then, अब when you are not respected in their country, तो वो कह रहे हैं हमें अलग स्टेट दे दो फिर. Now, when the requests were repeatedly denied, they demanded Tamil Elam. Independent Tamil Elam means they wanted a separate Tamil state, जिसमें एक में तुम सिन्हालाज रहो, एक में हम तमिल रहेंगे. और obviously it's not easy to get a state, and gradually it turned into a widespread conflict. You can say civil war हुआ, और उसमें बहुत killings हुई. Many of them had to leave the country, कुछ का livelihood चला गया, everything. And it was a terrible setback to social, cultural and economic life of the country, जो 2009 में end हुआ है civil war. अब ये तो था. We have seen the distribution, the ethnic composition of Belgium also. We have seen the ethnic composition of Sri Lanka also, and why it turned. I mean, why civil war happened in Sri Lanka. We have seen that. Now coming on to Belgium, कि Belgium ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे कोई war नहीं हुआ, यहाँ people lived happily. तो Belgian leaders took a different path. उन्होंने कहा whatever different religion or cultural diversities are there, we will recognize them. 1970 से लेकर 1993 तक
इन द पीरियड ऑफ 23 years, कितने छोटे स्पैन में इन्होंने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा। क्यों करा? जिससे सब लोग खुश रहे, टू एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। कुछ ना कुछ इनोवेटिव निकालते थे कि फाइट ना हो। नाउ वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. देखो कितनी अच्छी चीज बोल दी, कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी का डिफरेंस ही नहीं करा, दोनों इक्वल रहेंगे। तो मेजोरिटी में हो तो इक्वल हो, माइनॉरिटी में हो तो इक्वल हो, किसी के मन में कोई डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस जाएगा ही नहीं। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. हर लैंग्वेज के ग्रुप से कुछ कोई भी लॉ आपको बनाने हैं, कुछ स्पेशल लॉज जिससे मे बी मैक्सिमम लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइफ पे, तो उसमें हर लिंग्विस्टिक ग्रुप का सपोर्ट चाहिए। सो नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, लोगों का ट्रस्ट भी बन गया। अच्छा, मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट के पास भी उन्होंने पावर शेयरिंग कर दी और ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है, दे आर जस्ट अ हेल्पिंग हैंड इन द पावर शेयरिंग। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी, कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिफरेंस नहीं। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में मिली, क्यों? क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में दी थी। तो एक तरह से इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो फाइट होती। नाउ अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट थी, दैट वाज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, कोई मैटर नहीं करता वो कहाँ रहते हैं, सेंटर में, कैपिटल में, किस स्टेट में, कहाँ नहीं, नथिंग। बट जो कम्युनिटी गवर्नमेंट सेलेक्ट होगी वो ओवरऑल सेलेक्ट होगी और उसमें एक लैंग्वेज कम्युनिटी का एक मेंबर आएगा। और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी? वो कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करती थी। अब सुनने में इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट यू थिंक द अरेंजमेंट्स आर सो गुड कि आज तक इतने अच्छे से काम इन्होंने करा है, कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, कोई फाइट नहीं हुई, कोई डिफरेंसेस नहीं आए। और जब यूरोप की कंट्री साथ में आई यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी दे वर फॉलोइंग। इतने अच्छे से उन्होंने अपने कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करा था, एकोमोडेशन करी थी कि बाकी यूरोपियन नेशंस ने भी उसका रिस्पेक्ट की। सो व्हाट वी हैव लर्न, ऑब्वियसली हर स्टोरी का कुछ ना कुछ लेसन होता है एंड वी शुड नो दैट। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। दोनों डेमोक्रेसी थी बट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। बेल्जियम में यूनिटी ऑफ द कंट्री वाज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। पावर शेयरिंग करा उन्होंने। श्रीलंका में उल्टा हुआ, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को का डोमिनेंस दिखाना चाहती थी, यूनिटी को कम करना चाहती थी, तो उसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर हो गया। Now comes why power sharing is desirable. There are two reasons power sharing क्यों desirable है, क्यों good है। पहला है it helps to reduce the possibility of conflict। लड़ाई नहीं होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल ऑर्डर अच्छे से रहेगा। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज वेरी ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी खराब भी कर सकती है। ये तो एक लॉजिकल रीजन हुआ कि हाँ क्यों करे, जिससे लड़ाई ना हो। और सेकंड है बहुत लॉजिकल रीजन, बहुत ज्यादा डीप रीजन ये है क्योंकि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का असेंस ही पावर शेयरिंग है। अगर आप पावर शेयर नहीं कर रहे तो किस तरह की डेमोक्रेसी, राइट? पावर, डेमोक्रेसी का नाम ही यही है दैट पावर शुड बी शेयर्ड बाय दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जिसको इसके इफेक्ट्स के साथ रहना है। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहां सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें, उनका अपना स्टेक लें। तो पहले रीजन जो ये है विच आई सेड कि हाँ जिससे लड़ाई ना हो, इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन। और जो सेकंड रीजन है कि असेंस में ही मॉरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यही करो, दैट इज कॉल्ड मॉरल रीजन।
So we have two reasons for power sharing. First is prudential, second is moral. And that's why we call that power sharing is essential. Any doubt? Now Khalil's dilemma. Now this is just a case study. As usual, Vikram was driving the motorbike under the vow of silence. So, and Vital was the silent rider. So, you know Vikram and Vital. Vital started telling Vikram a story to keep him awake while driving. So, what was the story? In the city of Beru, there lived a man called Khalil. His parents came from different communities. Father was Orthodox Christian and mother was Sunni Muslim. Actually, Muslims में there are two categories, Shias and Sunni. तो उसकी mom जो थी Sunni थी, fine. और Christian में भी there is Orthodox and Protestants. So he was Orthodox. This was not so uncommon in this modern cosmopolitan city. कुछ अजीब नहीं लगता because we have seen so many intercaste marriages nowadays. People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital, Beirut. They lived together and intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. And one of Khalil's uncles was killed in that war. उनकी death हो गई. And at the end of this war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing. What was the rule? The country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians. President हो गया Christian का, Prime Minister हो गया Sunni Muslim का, Deputy PM हो गया Orthodox Christian sect का, Speaker Shia Muslim का हो गया. तो यू हैव सीन सबको कुछ कुछ पावर दे दिया, लड़ाई के किस्सा ही खत्म. Christians agreed not to seek French protection and the Muslims agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. Christian ने कहा हम फ्रांस का साथ नहीं देंगे, Muslims ने कहा हम सीरिया का हेल्प नहीं लेंगे, मींस लड़ाई नहीं करेंगे. And when Christians and Muslims came to this agreement, they were equal in population. और सबने इस agreement का respect करा. Although अब वहां पे Muslims are in majority. Khalil को ये system नहीं पसंद आया. He is a popular man with political ambition. और उस present system में Khalil वो position नहीं ले सकता था because top position was belonging to that Christian. क्योंकि वो ना अपने father का practice करता था ना mom का religion practice करता था and he did not want to be known by either. वो कहते उसे ये समझ नहीं आया why Lebanon can't be a normal democracy. Just hold an election, allow everyone to contest. जो जीता वही सिकंदर, जो किसी भी कम्युनिटी से वो आए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? He asked his elders जिन्होंने देखा था bloodshed, उनको पता था कि present system best है, but Khalil को नहीं समझ आता था. And the story was not finished, but they had reached the TV tower. Vital wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, तुम क्या करते? So basically it's a question to think कि क्या जो present system था that was good या तुम किसी तरह से नया system लाते जिससे peace maintain रहता. Now that this is the crux of the chapter, that is forms of power sharing. Power sharing क्यों करना है वो हमने काफी सारे example से देख लिया क्यों जरूरी है, otherwise क्या होगा. And one basic principles of democracy is that people are the source of political power. Democracy में और people खुद को govern करते हैं through institutes of self government. हर एक ग्रुप को रिस्पेक्ट किया जाता है. This is the feature of democracy. सबकी आवाज होती है पब्लिक पॉलिसी शेप करने में. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed. इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो, एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट मत करो. तो अब फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट तो करे, बट कितनी तरह से हो सकता है? पहला है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑर्गन मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल क्योंकि तीनों ना सेम लेवल पे हैं, बस अलग अलग पावर्स को एंजॉय करें. जैसे लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है. एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कराता है एंड जुडिशरी चेक करता है कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं. अगर नहीं हो रहे सही से तो उसको पनिशमेंट देगा. एंड ईच ऑर्गन कैन चेक द अदर.
इससे बैलेंस ऑफ पावर भी रहता है. Like we have seen, ministers and government officials, they are responsible to the parliament. Judges are appointed by executive. They can check the functioning of executive or the laws made by legislature. And this system is called system of checks and balances. किसी को कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता, इसीलिए चेक्स रखे जाते हैं. अब ये तो था हॉरिजॉन्टल, सब सेम लेवल पे है. अब आ जाते हैं वर्टिकल, एक के नीचे. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक रीजन के लिए. तो एक हो गई फेडरल गवर्नमेंट. इंडिया में इसे बोलते हैं सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट. फिर आती है हमारी प्रोविंशियल रीजनल पे, इंडिया में उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. कई, इट्स नॉट नेसेसरी हर जगह सेम हो, कई जगह कहीं और कुछ और सिस्टम होता है. लाइक वी हैव सीन बेल्जियम में अलग था, श्रीलंका में अलग था. इस वाले डिवीजन को बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. फिर इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है, लोकल गवर्नमेंट्स आती है, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत. ये भी जरूरी नहीं हर जगह हो. इन्होंने कर रखा है, इंडिया में कर रखा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब ये है, अब पावर और किस तरह शेयर हो सकता है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप. जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में थी. ओके, तो अपनी अपनी कम्युनिटी के बारे में लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और किस तरह से हम पावर शेयर कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स के उससे. इसमें क्या है, लोग अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी चूज कर सकते हैं जिसकी आइडियोलॉजी उन्हें पसंद हो, जिसका मैनिफेस्टो निकलता है इलेक्शन के टाइम उन्हें पसंद हो. दे विल रिमेन इन पावर जब तक लोग खुश है, नहीं तो हट जाएंगे. तो ये क्या, ये वो पावर शेयरिंग है जिसमें पॉलिटिक्स में आके लोग शेयर करते हैं. फिर इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं जो अपने ग्रुप के इंटरेस्ट दिखाते हैं, जैसे ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर. फाइन. तो ये लोग भी जब प्रेशर डालते हैं, सारा इंडस्ट्रियल बिजनेस क्लास अगर प्रेशर डालेगा तो उनकी फेवर की पॉलिसी बनेगी. फार्मर्स प्रोटेस्ट करेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी. सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स जिसमें पावर शेयर हो सकता है. ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चंस.